سب سے پہلے راجپوتوں سے اس کا تنازع ہوا۔ اس جھگڑے میں تقریباً 900 راجپوت مارے گئے۔ باقی راجپوتوں نے مہابت خان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد افغانوں نے مہابت خان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح مہابت خان کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے۔ نومبر کے مہینے میں شاہی قافلہ کابل سے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی میں جہانگیر نے مہابت خان کو پیغام بھیجا، ماں بدولت فوجی دستوں میں کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ مہابت خان نے حکم شاہی کو بغور پڑھا اور تصادم سے بچنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر ایک منزل آگے چلا گیا اور پھر بہت تیزی سے لاہور کی طرف بڑھا۔ مہابت خان نے شہنشاہ کے حکم کو تسلیم کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر وزیر اعظم آصف خان، اس کے لڑکے اور جہانگیر کے 2 بھتیجوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نور جہاں نے مہابت خان سے بار بار اصرار کیا کہ وہ ان تمام یرغمالیوں کو آزاد کر دے۔ کچھ دن کے بعد مہابت خان نے نور جہاں کی بات مان لی۔ پہلے اس نے شہزادوں کو اور پھر کچھ وقفے سے آصف خان کو اس کے لڑکے کے ساتھ واپس کر دیا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی مہابت خان مشرقی علاقے کی طرف بڑھا تاکہ بنگال سے آنے والے خزانے پر قبضہ کر سکے۔ جہانگیر کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ جس زمانے میں شہنشاہ کابل میں تھا تو اسے اپنے بدترین دشمن ملک امبر حبشی کی موت کی خبر ملی تھی۔ شہنشاہ کے لیے یہ بڑا مسرت انگیز حادثہ تھا۔ ملک امبر حبشی کے بعد جہانگیر کو آئے دن کی بغاوتوں اور ہنگاموں سے نجات مل گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی صحت کی خرابی کو بھول کر اپنے دشمن کی موت کا جشن منا رہا تھا کہ اسے شہزادہ پرویز کے انتقال کی جانگوداز خبر ملی۔ اس خبر نے جہانگیر کو اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ وہ کئی دن تک بستر پر پڑا رہا۔ جوان سال بیٹے کی موت نے جہانگیر کے سینے کے داغوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا، مگر یہ نیا داغ ایسا تھا جس کی خلش نے جہانگیر کے صبر و قرار چھین لیے تھے۔ شہزادہ پرویز شروع سے رنگین مزاج انسان تھا۔ اس نے باپ کے اقتدار اور دولت سے یہی فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیف و نشاط میں ڈوبا رہتا تھا۔ خوبصورت عورتوں کا اجتماع اور پرانی شراب کا ذخیرہ، شہزادہ پرویز کی زندگی ان 2 تباہ کار محاذوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک بلانوش انسان تھا اور شراب کو پانی کی جگہ استعمال کرتا تھا۔ شاہی طبیبوں نے اسے کئی بار تنبیہ کی تھی کہ اگر شہزادے نے شراب نوشی ترک نہیں کی تو آنے والا کوئی بھی لمحہ زندگی کے چراغ کو بجھا سکتا ہے، مگر شہزادہ پرویز طبیبوں کے مشوروں کو مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا۔ ہم بہت سخت جان ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آئے گی۔ شہزادے کی بے پرواہی سے مایوس ہو کر شاہی طبیبوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی عرضداشت شہنشاہ کے حضور پیش کی۔ جہانگیر نے وقتی طور پر اسے خط کے ذریعے سخت الفاظ میں حکم دیا کہ وہ شراب چھوڑ دے، مگر شہزادہ پرویز پر احکام اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو دونوں کے درمیان طویل فاصلہ اور دوسرے جہانگیر کی تھکا دینے والی بیماری، پھر آئے دن کی شورشیں اور مہابت خان کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیاں۔ غرض ان تمام چیزوں نے جہانگیر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بیٹے کی خبرگیری کر سکے۔ اب یہ لرزہ خیز اطلاع موصول ہوئی کہ اس کا محبوب بیٹا شدید حسرت و ناکامی کے عالم میں خون تھوکتا ہوا دنیا سے گزر گیا۔ شہزادہ پرویز کی موت پر جہانگیر نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور پھر ماتمی لہجے میں نور جہاں سے مخاطب ہوا، اور کتنی آفات رہ گئی ہیں جن کا نزول ابھی باقی ہے۔ ابھی ہم خسرو کی موت کو نہیں بھولے تھے کہ پرویز نے ہمارے دل میں نیا شگاف ڈال دیا۔ آخر یہ زخم ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں جن کے علاج کے لیے اس دنیا میں کوئی مرہم موجود نہیں۔ جہانگیر چند دنوں میں پہلے سے زیادہ بوڑھا اور ناتوان نظر آنے لگا۔ نور جہاں شوہر کو تسلیاں دیتی رہی، مگر جہانگیر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دھواں بھرتا گیا اور وہ چپ چاپ روتا رہا، مگر کبھی کبھی اس کے ہونٹوں سے ایک تیز چیخ نکل جاتی۔ شہزادہ پرویز کے انتقال کے وقت شاہ جہان دکن میں مقیم تھا۔ بھائی کے انتقال کی خبر سن کر وہ اداس ہو گیا۔ آخر شہزادہ پرویز سے اس کا خونی رشتہ تھا اور اسی رشتے نے شاہ جہاں کو افسردہ بنا دیا تھا۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے پرویز اس کا حریف تھا، لیکن شاہ جہان نے بھائی کی موت پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے پرویز سے بہت سی شکایتیں تھیں، مگر اب ان کا ذکر فضول ہے، شاہ جہان نے ممتاز محل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جانے والا اتنی دور جا چکا ہے کہ اسے آواز بھی نہیں دی جا سکتی۔ خدا اس کی مغفرت کرے اور مرحوم کی روح کو سکون بخشے۔ یہ رسمی کلمات نہیں تھے، شاہ جہان نے بڑی سچائی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ ارجمند بانو فطرتاً ایک رحم دل عورت تھی، اسے بھی شہزادہ پرویز کی موت کا صدمہ ہوا تھا، مگر مارخ نے اس خبر کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا تھا۔ اسے کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ ارجمند بانو نے مارخ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مارخ؟ ارجمند بانو کے لہجے میں تشویش بھی تھی اور حیرت بھی۔ مارخ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں آقا زادی، کسی کے مرنے کی خبر سن کر مجھ پر اسی قسم کا رد عمل ہوتا ہے۔ مارخ نے جھوٹ بول کر اپنی دلی کیفیات پر پردہ ڈالنا چاہا۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मैंने जिंदगी में इतने सदमात बर्दाश्त किए हैं कि अब कोई भी अलमनाक खबर सुनकर होशो हवास खो बैठती हूँ। मेरे मरहूम बाप ने शहजादा परवेज की बहुत खिदमत की थी, बस यही सोचकर दिल उदास हो गया। गुजरे हुए दिनों की याद आने लगी। कैसा खुशगवार और पुरसुकून जमाना था। शाही महल की वो जगमगाती हुई नगमा और तकरीबात, वो जश्न, वो हंगामा खेजियाँ, कैसा सुहाना मौसम था। अब तो चांद सितारों से भी आग बरस रही है और अब तो बादे सबा के झोंके भी जलाए डालते हैं। मारुख ने बड़ी जहानत के साथ मौजू बदल दिया था। आपकी जिलावतनी, साहिब आलम की दरबदरी, ये ऐसी तल्ख हकीकतें हैं जो मुझे चैन से नहीं रहने देती। मारुख की बातें सुनकर अर्जुमंद भी उदास हो गई। सब्र करो मारुख, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अर्जुमंद के तसल्ली आमेज कलिमात सुनकर मारुख रोने लगी। अर्जुमंद का ख्याल था कि मारुख जिलावतनी की इस जिंदगी से तंग आ गई है, इसलिए उसने अपनी वफादार कनीज को समझाते हुए कहा, अगर तुम मौसम की इन सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर कसरे शाही वापस चली जाओ। साहिब आलम तुम्हें अपने फौजियों की निगरानी में आगरा भेज देंगे। अपनी आकाजादी की इस पेशकश पर मारुख तड़प उठी। क्या आप समझती हैं कि मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती हूँ? अर्जुमंद ने बड़े बावकार अंदाज में कहा। मारुख, मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ, मगर आज हम पर अजीब सा वक्त आन पड़ा है। एक एक करके तमाम साथी बिछड़ गए। साहिब आलम और मैं नहीं चाहते कि कोई शख्स हमारी वजह से मसाइब बर्दाश्त करे। तुम अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। हर इंसान को हक है कि वो अपनी पसंदीदा जिंदगी इख्तियार करे। जिस रास्ते पर चल रही हूँ वो एक खत्म ना होने वाला खारजार है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे पांव आबलों से भर गए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि तुम इस राह पर अचानक लड़खड़ा कर गिर जाओ और फिर इस काबिल भी ना रहो कि दोबारा उठकर अपने कदमों पर खड़ी हो सको। ये मेरी जिंदगी की एक आजमाइश है और मैं इस आजमाइश से तन्हा गुजरना चाहती हूँ। नहीं आकाजादी, इस तरह तो मेरी जिंदगी एक लानत बनकर रह जाएगी। मारुख के लहजे में बड़ा सोज था, बड़ी खालिश थी। मैं तो आपके गुजरे हुए दिनों को याद करके रो रही हूँ। मेरा माजी ही क्या, आपके यहाँ आने से पहले मैं एक अदना दर्जे की कनीज थी। ये तो आपकी मेहरबान जात है जिसने मुझे बराबरी का दर्जा दिया, वरना पूरी जिंदगी बदतरीन गुलामों के साये में गुजर जाती। इतनी नवाजिशात के बाद आप मुझसे कह रही हैं कि लाल किले वापस जाकर उन खुशामदियों की सफ में शामिल हो जाऊं जो अपना ज़मीर तक फरोख्त कर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? अब मेरा मरना और जीना, खुशी और गम, हाल और मुस्तकबिल आप ही की ज़ात से वाबस्ता है। अगर आप और साहिब आलम शाहवाला की नज़र में बागी हैं तो फिर मैं भी बागी हूँ। आप मेरे पैरों के आबलों की बात करती हैं। अगर इस रास्ते में ये पांव कट भी गए तो मैं सीने के बल चलूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। एक कनीज की जानिसारी का ये जज्बा देखकर अर्जुमंद बानो के चेहरे पर अजीब सा रंग उभर आया। मारुख, मुझे तुम्हारी रफाकत पर नाज है। मारुख ने बड़ी मुश्किल से अपने राज को पोशीदा रखा था। अर्जुमंद बानो को जरा भी शक न हो सका कि मारुख किस लिए आंसू बहा रही है। वो लोगों के दरमियान जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर जब तन्हाई मयस्सर आती तो बेइख्तियार रोने लगती। रात रात भर जाग कर शहजादा परवेज के हक में दुआएं करती। ऐ खुदा, उस शख्स को बख्श दे जो मेरी आबरू का कातिल था। मैं अपना खून उस पर माफ करती हूँ। तू भी उसे माफ कर दे कि तुझसे ज्यादा माफ करने वाला कोई नहीं। शहजादे को मेरे हिसाब में न पकड़ना कि वो मेरा महबूब था। मैं हशर के मैदान में तुझसे कोई मुतालबा नहीं करूंगी। तू गवाह रहना कि मैंने परवेज को माफ कर दिया। मैं चाहे आतिश गम में झुलस कर राख हो जाऊं, मगर तू उसे दोज़ख की आग से बचा लेना। ऐ बेपना करम वाले, उस पर अपना करम करके आज वो सिर्फ तेरे करम का मोहताज है। मारुख को गिरियाजारी करते करते पूरी रात गुजर जाती। फिर जब वो सुबह लोगों के सामने आती तो उसकी आंखें मुतवर्रम होती। सिकंदर मिर्जा से मारुख की ये हालत छुपी ना रह सकी। उसने कई बार उस औरत का हाल पूछने की कोशिश की जिसका तर्ज अमल बड़ा जारहाना था और जो उससे शदीद नफरत करती थी। मारुख, मुझे ये हक तो हासिल नहीं कि मैं तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत करूं, मगर फिर भी मैं अपने दिल से मजबूर हूं। मुझे बताओ कि वो कौन सा जख्म है जिसने यकबयक तुम्हारे चेहरे की तमाम रौनकें छीन ली हैं। मारुख ने बिगड़ी हुई नजरों से सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा और चुपचाप गुजर कर चली गई। फिर जब एक दिन सिकंदर मिर्जा ने मारुख को रोककर यही बात पूछी तो उसके माथे पर कई बल पड़ गए। आखिर आपको ये इजाजत किसने दी है कि मेरे हालात से दिलचस्पी रखें? बेशक ये रिश्ता यकतरफा सही, मगर तुम मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकती। सिकंदर मिर्जा ने शिकस्ता लहजे में कहा, मुझे आप ही से नहीं इस लफ्ज से भी नफरत है। मारुख के होंठों से तलखियों और नफरतों की आग बरस रही थी। मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। सिकंदर मिर्जा ने बड़ी शाइस्तगी से कहा,
मैं तुमसे जवाबी मोहब्बत नहीं मांगता, मगर इतना जरूर चाहता हूं कि मुझे अपनी उदासी की वजह बता दो। जब तक तुम्हारे होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट वापस नहीं आएगी, मैं भी अजियतों की आग में जलता रहूंगा। एक लम्हे के लिए मारुख ने सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। मारुख के दिल में खलिश सी पैदा हुई, मगर वो फौरन ही पत्थर बन गई। जब मुझसे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर ये पुरसिश हाल क्यों? यकायक मारुख बहुत ज्यादा बरहम नजर आने लगी थी। रिश्ता है, मगर कभी तुमने महसूस नहीं किया। सिकंदर मिर्जा उसी लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैं किसी रिश्ते को तस्लीम नहीं करती। मारुख पहले से ज्यादा गजबनाक हो गई थी। कसरे शाही की रंगीन फजाओं ने आपको गुमराह कर दिया है। सिकंदर मिर्जा सन्नाटे में आ गया। आप समझते हैं कि मैं इन पुरफरेब बातों से बहल जाऊंगी? मारुख ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मारुख। सिकंदर मिर्जा की आवाज बहुत मध्यम थी। अगर किसी दूसरी मंजिल का मुसाफिर होता तो कभी का जा चुका होता। एक बार मुड़कर तो देखो कि मैं नामुराद कब से अकेला खड़ा हूं। ये मुझ पर कोई एहसान नहीं। मैंने किसी से कब कहा था कि कोई मेरा इंतजार करे? ये महज दीवानगी है, और दीवानों का यही हश्र होता है। मारुख ने सिकंदर मिर्जा की तमाम इल्तिजाओं को बुरी तरह झुटला दिया था। सिकंदर मिर्जा हसरत ज़दा नजरों से देखता रहा और फिर मारुख तेज कदमों के साथ चली गई। फिर जब रात की तन्हाई मयस्सर हुई तो मारुख ने पहली बार सिकंदर मिर्जा के लिए अपने दिल में गुदाज महसूस किया। अगर वो हवस परस्त होता तो बेशुमार रास्ते खुले हैं, किसी पर भी चला जाता। मारुख ने सोचा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक शरीफ इंसान तेरी वजह से तबाह हो रहा है। मारुख ने अपने आप को मुखातिब करके कहा। मैं भी क्या करूं, अपने अहद से मजबूर हूं। मारुख ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मैं तो एक की हो चुकी, फिर उसकी यादों से किस तरह बेवफाई करूं? और सिकंदर मिर्जा का क्या होगा जिसने तेरी खातिर दुनिया भर की औरतों को नजरअंदाज कर दिया है? मारुख के जहन में दूसरा सवाल उभरा। मारुख इस सवाल का जवाब न दे सकी और बेख्तियार रोने लगी। सिकंदर मिर्जा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? मैं किस किस का मातम करूं? अपने महबूब की मौत का या तुम्हारी नाकाम हसरतों का? मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत मजबूर हूं। तुम एक अजीम इंसान हो सिकंदर मिर्जा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। काश मेरी तबाही से पहले तुम मुझे मिल जाते, फिर मैं अपनी किस्मत पर नाज करती। तुम बहुत बुलंद हो, मेरे तसव्वुरात की परवाज से भी ज्यादा। मैं बहुत पस्ती में हूँ। तुम्हें छूना चाहती हूँ मगर छू नहीं सकती। तुमसे तो उस खुदगरज दुनिया में वफा का एतबार कायम है। फिर तुम क्यों एक कनीज की तलाश में यहाँ तक आ गए? तुम वापस चले जाओ, खुदा के लिए वापस चले जाओ। मारुख बहुत देर तक अपने आप से बातें करती रही। उसके रुखसार आंसुओं से भीगते रहे। वक्त तेजी से गुजरता रहा। यकायक हालात ने एक और करवट ली। जब शाहजहां को महाबत खान की बगावत का इल्म हुआ तो उसने खाने जहां से कहा कि वो अपने बाप की मदद के लिए जाना चाहता है, मगर खाने जहां ने किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया। मजबूरन शाहजहां ने थोड़ी सी फौज ली और शिमाल की तरफ रवाना हो गया। जब शाहजहां अजमेर पहुंचा तो उसके पुराने इत्तेहादी राजा भीम सिंह का लड़का किशन मर गया। नतीजतन राजपूत सिपाही किशन सिंह की लाश लेकर वापस हो गए। इस तरह शाहजहां की फौज की तादाद कुछ और कम हो गई। शाहजहां का ख्याल था कि कंधार पर ईरानी कब्जे के बावजूद शाह ईरान उससे बाइज्जत सलूक करेगा, क्योंकि शाहजहां ने अपनी तरफ से ताल्लुकात में कोई तलखी पैदा नहीं होने दी थी। लेकिन ठट्ठा के गवर्नर की वजह से शाहजहां को ताखीर हो गई। ठट्ठा का गवर्नर शहजादा शहरयार का इत्तेहादी था और उसने शाहजहां की मुजाहमत के लिए बड़ी फौज जमा कर ली थी। शाहजहां के साथियों ने किले पर हमला कर दिया, मगर उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। ये हमला शाहजहां की मर्जी के खिलाफ किया गया था। अभी शाहजहां अपनी ताज़ा शिकस्त और मुस्तकबिल के बारे में गौर ही कर रहा था कि उसे नूरजहां का खत मिला। नूरजहां ने मुख्तसरन लिखा था, तुम इत्मीनान से रहो, महाबत खां के असर और रसूख को ख़त्म कर दिया गया है। शाहजहां इस खत का मफहूम समझने से कासिर था कि आखिर मलिका हिंद उसे खामोश और मुतमईन रहने की तलकीन क्यों कर रही है। नूरजहां ने एक तरफ शाहजहां को खत लिखकर मुतमईन करने की कोशिश की कि वो अपनी जगह से हरकत न करे, और दूसरी तरफ महाबत खां को हुक्म दिया कि वो शाहजहां की बगावत को फुरू करने के लिए फौरन ठट्ठा पहुंच जाए। इस तरह नूरजहां का मकसद ये था कि जब दोनों दुश्मन आपस में टकराएंगे तो यकीनी तौर पर किसी एक से नजात हासिल कर ली जाएगी और दूसरी तरफ महाबत खान दरबार शाही से दूर हो जाएगा। शाहजहां वाक़यतन इस बेसरो सामानी के आलम में भी अपने बाप की मदद करने के लिए निकला था, मगर उसके खिलाफ महल्लाती साजिशों का जाल मजबूत तर होता चला गया। दूसरी तरफ महाबत खान नूरजहां के कहने पर शाहजहां से जंग करना चाहता था, मगर शाही खजाने के लालच ने उसे बंगाल की तरफ जाने पर मजबूर किया। मगर जब वो शाही खजाना हासिल करने में नाकाम रहा तो उसने मेवात में पनाह ली। अब महाबत खान का जोर टूट चुका था। इस सूरत हाल के पेश नज़र उसने 2000 सिपाहियों के साथ
अपनी तमाम खिदमात शाहजहां के सपुर्द कर दी। इस तरह नूरजहां का मंसूबा नाकाम हो गया और उसके दोनों ताकतवर हरीफ एक ही महाज पर जमा हो गए। शाहजहां की बदबख्ती के साए आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे थे। 1627 ईस्वी के मौसम बहार में शहनशाह गर्मियां गुजारने की गरज से कश्मीर रवाना हुआ। जब शाही काफिला लाहौर से रवाना हुआ तो उस वक्त भी जहांगीर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। दमे के मरज की वजह से वो खासा कमजोर हो गया था, यहाँ तक कि सवारी के काबिल भी नहीं रहा था। जहांगीर की भूख मर चुकी थी और इंतहा यह है कि शराब भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरती थी। मौसम खजा में शाही काफिला कश्मीर से वापस हुआ। इस दौरान उसने एक बार शिकार भी खेला, मगर इस तरह के उसने एक खादिम का सहारा लेकर बंदूक चलाई। ये बड़ी खौफनाक अलामत थी। शाही तबीब समझ चुके थे कि फरिश्ता अजल दबे कदमों जहांगीर का ताक़ुब कर रहा है। अगरचे जहांगीर कश्मीर को दुनिया की जन्नत समझता था, मगर इस बार ये जन्नत भी उसे सुकून की चंद सांसें फराहम न कर सकी। जहांगीर तकरीबन रोजाना ही नूरजहां के साथ सैर के लिए निकलता था, मगर उसे फितरत के हसीन मनाजिर में कोई कशिश महसूस न होती। वो अक्सर नूरजहां के कांधे पर सर रखकर कहता, मलिका आलिया, ऐसे महसूस होता है जैसे माँ बदौलत दोबारा लाहौर नहीं देख सकेंगे। नूरजहां अपनी महबूबाना अदाओं का मुजाहरा करती, लेकिन अब इस हसीन तरीन औरत के गमजों में भी कोई कशिश बाकी नहीं रही थी। जहांगीर बड़ी मायूसी की बातें करता, जैसे उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही हो। नूरजहां घबराकर शहनशाह के खुश्क होंठों पर हाथ रख देती। आलम पना, अपनी जबान से ऐसे कलिमात ना अदा करें जिन्हें सुनकर आपकी इस कनीज का दिल भी टूट जाए। नूरजहां को बेकरार देखकर जहांगीर संभलने की कोशिश करता, मगर उसके हौसले जवाब दे चुके थे। आखिरी दिनों में जहांगीर महल की कनीजों से ऐसी शफकत आमेज गुफ्तगू करता कि वो परेशान हो जाती और मुंह फेर कर रोने लगती। बड़ी नासाजगार फजा थी, हर तरफ वीरानी ही वीरानी नजर आती थी। एक दिन उसने नूरजहां के कांधे पर सर रखकर कहा कि अगर यहाँ से कूच करने में उजलत से काम लिया गया तो ये खित्ता मेरी जिंदगी में हमेशा खार बनकर खटकता रहेगा। नूरजहां ने घबराकर शहनशाह की पेशानी को छुआ और फिर जहांगीर को साथ लेकर बारादरी से बाहर निकल आई। अब की बार शहनशाह का जुलूस क़ब्ल वक्त ही वादी कश्मीर से रवाना हो गया। वो पालकी में गाँव तकिए का सहारा लेकर नूरजहां के साथ बैठा और दूर तक फैले हुए पहाड़ी सिलसिलों को वीरान आंखों से देखता रहा। नूरजहां ने शहनशाह का दिल बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार उसके होंठों पर एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट उभरती और डूब जाती। भिंबर से 2 मील दूर जब शाही जुलूस खैमजन होने लगा तो नूरजहां मौसम गर्मा की थकन और गुनूदगी से चौंकी। उसने अपने होंठों पर एक महबूबाना मुस्कुराहट सजाई और दुज़दीदा नजरों से शहनशाह की तरफ देखा, मगर दूसरे ही लम्हे नूरजहां की दिलनवाज मुस्कुराहट पथरा कर रह गई। शहनशाह की रूह आलम ख्वाब ही में परवाज कर चुकी थी। वो गाँव तकिए के सहारे आंखें बंद किए सो रहा था, लेकिन इस तरह के ये उसकी अबदी नींद थी। जहांगीर को तमाम अजियतों से निजात मिल चुकी थी और वो इस फानी दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। नूरजहां ने फौरन सालारे काफिला को पर्दे के पास बुलाया और इंतहाई पुरजलाल लहजे में उसे हुक्म दिया, पड़ाव मौकूफ कर दिया जाए और सफर तेजी के साथ जारी रहे। सालारे काफिला और दूसरे खिदमतगारों को इतना पूछने की जरूरत न हो सकी कि सालह साल की रस्म में इस अचानक तब्दीली की क्या वजह है। खासों और कनीजों की जबानी जुलूस में यह खबर उड़ते उड़ते गर्म हो गई कि शहनशाह की तबीयत नासाज है और मलिका आलिया जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना चाहती हैं। अंबर और लोबान की खुशबू और अर्के गुलाब की बारिश के बावजूद शहनशाह को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखना आसान नहीं था। गुजरात से 1.5 मील के फासले पर नूरजहां ने काफिला रोक देने का हुक्म दिया और फौरी तौर पर शाही तबीब को तलब किया गया। शाही तबीब लरजते कदमों से आगे बढ़ा और पालकी के करीब पहुंचकर जमी बोस हो गया। नूरजहां ने इस मौके पर बेमिसाल कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। वो पूरे जाहो जलाल के साथ पालकी से नीचे उतरी। उसका इत्मीनान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से दो चार हो चुकी है। नूरजहां ने शाही तबीब का सलाम कबूल किया और हाथ के इशारे से तखलिये का हुक्म दिया। तमाम कनीजें और खुद्दाम सर झुकाए हुए चले गए, यहाँ तक कि पालकी से 2 गज के फासले तक कोई खिदमतगार नहीं था। जब मुकम्मल तन्हाई हो गई तो नूरजहां ने शाही तबीब को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आकाए नेमत इस दुनिया से गुजर चुके हैं? शाही तबीब बदहवास नजर आने लगा। नहीं मलिका आलिया, मेरी समात इस खबर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शाही तबीब की आवाज लरज रही थी। हाँ, ये आफत नागहानी इस जमीन पर नाजिल हो चुकी है। ये कहते कहते नूरजहां के चेहरे पर अक्स मलाल उभरा, मगर उसने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया। मेरा हुक्म है कि जब तक मैं अपनी जबान से कुछ न कहूं उस वक्त तक ये राज तुम्हारे सीने में दफन रहना चाहिए। शाही तबीब ने सर झुका दिया। और मेरी ख्वाहिश है कि शाहवाला का जिस्म गर्मी से महफूज रहे। अब ये मुमकिन नहीं रहा।
शाही तबीब ने कांपते हुए लहजे में कहा, मौसम बहुत गर्म है, क्या तुम्हारी हिकमत अमली में ऐसी कोई तदबीर नहीं कि आलम पना का जिस्म सड़ने से महफूज रह सके?